Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I clear and audible? Walaikum salam wa rahmatullah. Alrighty. Let's begin our session of the Sealed Nectar biography of the Noble Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Session number 6. So yesterday we spoke about how the wet nurse Halima, she started receiving the blessings as soon as she picked up Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and we continue from there. The tradition is clear on the point that Halima's return journey and her subsequent life, as long as the Prophet stayed with her, was encircled with a halo of good fortune. The donkey that she rode when she came to Makkah was lean and almost lame. It recovered speed, much to the amazement of Halima's fellow travelers. By the time they reached the encampments of the Bani Sa'ad clan in the country, they found the scales of fortune turned in their favor. अब ऐसा हुआ कि जिस पल से दाई हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लिया था, तब से उनके साथ जो है लक जो है, उनकी जो फॉर्च्यून है वो फेवर में उनकी चलने लगी और वो ब्लेसिंग्स अल्लाह की तरफ से बरका और ब्लेसिंग्स की भरमार होने लगी। पहले तो वो जो म्यूल जो गधे पर आई थी वो बड़ा कमजोर सा, बिल्कुल स्लो सा था, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ थे तो वो बिल्कुल हेल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्पीडली उसने उनको कैरी किया हुआ था और दौड़ लगाई उसने। और सब जो हलीमा की जो कलीग्स और फ्रेंड्स थे, दे वर शॉक्ड, यानी कि हाउ डिड दिस हैपन। उसके बाद जो बैरन लैंड थी, बिल्कुल मैंने बताया था ना कि उस वक्त वो साल और उसके पहले जो थे वो थोड़ा सूखा पड़ा था बहुत ज्यादा, तो उस वजह से बारिश नहीं हुई थी, ना खेती ना कुछ, तो इनकी पूरी यानी फसलें जो थी और जो इनका माल का जो जरिया था वो सब सूखा पड़ा हुआ था। तो लिटरली वहां पर क्या हो गया, ग्रास आ गई, एनिमल्स जो है वो बाहर जाके चरने शुरू कर दिए, जो बकरियां थी उनके दूध आ गए, जो कैमल्स थे उनके दूध आ गए, यानी एवरीथिंग वाज गेटिंग बेटर। Muhammad sallallahu alaihi wasallam stayed with Halima for 2 years until he was weaned, as Halima said. We then took him back to the mother earnestly, requesting her to have him stay with us so that we may benefit from the good fortune and blessings he brought us. We persisted in our request, expressing our anxiety over the child catching a certain infection peculiar to Makkah. At last we were granted a wish and the Prophet stayed with us until we returned with him. अब 2 साल ऐसे ही गुजर गए। तो सिलसिला ये होता था कि 2 साल दूध पिलाने के बाद फिर उन्होंने लौटाना होता था बच्चे को। तो ये अभी क्या करने लगी, हलीमा ने जाके रिक्वेस्ट किया उनकी मदर से कि आप जो है बच्चे को थोड़ा टाइम और हमारे साथ रहने दें। अब उनकी अपना मफाद था इसमें, बिकॉज शी न्यू वेरी क्लियरली, हर हस्बैंड न्यू वेरी क्लियरली कि ये बच्चे के वजह से अल्लाह ताला बहुत हमारे ऊपर मेहरबानियां कर रहे हैं, तो हम थोड़ा और बेनिफिट्स उठा सकें। तो वो उनको उनकी मदर को कन्विंस करने लगी और फिर उनको बहाना क्या बताया कि मक्का में एक इन्फेक्शन चल रहा था उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी लो होती है तो वो बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। एनी केस दे सक्सीडेड एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर उनके साथ रवाना हुए। द प्रॉफिट स्टेड विद देम अंटिल ही वाज अबाउट 4 or 5 years, तो तकरीबन और एडिशनल 2 से 3 साल वो उनके साथ रहे, यानी 4 या 5 साल तक टोटल उनके साथ रहे। Then, as related by Anas in Sahih Muslim, Jibril Amin came down, opened his chest and took out the heart. He then extracted a blood clot out of it and said, that was the part of shaitan in thee. And then he washed it with the water of Zamzam in a gold basin. After that, the heart was joined together and restored to its place. The boys and the playmates went running to his mother, that is his nurse, and said, verily Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has been murdered. They all rushed towards him and found him to be all right, and that only his face was pale. And Anas said, I have seen the mark that was left on his chest. एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फॉस्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ खेल रहे थे। ये किस्सा जो है अनस रदियल्लाहु अन्हु ने हदीस में सही मुस्लिम में रिकॉर्डेड है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उनका चेस्ट जो है वो खोला, उसमें से हार्ट को निकाला, हार्ट के अंदर से उन्होंने एक ब्लड क्लॉट निकाला और कहा कि ये जो ब्लड क्लॉट है वो शैतान है। और फिर उसके बाद उसको हार्ट को जमजम पानी में वॉश किया गोल्ड बेसिन के अंदर, और फिर से दोबारा से वो हार्ट उनके चेस्ट में रिस्टोर करवा दिया। अब ये जो लड़कों ने ये किस्सा देखा, दे वर शॉक्ड एंड स्टन्ड। उन्हें
पता नहीं था लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि क्या माजरा है। वो अपनी मदर के पास आए, हलीमा के पास, और उनको बयान किया किस्सा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्डर हो गया है। और फिर वो सारे भागे दौड़े उनके पास, तो उन्होंने देखा कि वो ठीक ठाक हैं, हयात हैं, बैठे हुए। सिर्फ उनका जो फेस था, जो उनकी शक्ल थी, वो थोड़ी पेल हो गई थी, यानी उनके थोड़े रंग उड़े हुए थे। एंड अनस सेड कि वो जो चेस्ट पे जैसे ऑपरेशन नहीं होता बाकायदा, उस तरीके का कुछ मार्क उन्होंने उनके चेस्ट पे देखा था। Back to his passionate mother. After this event, Halima was worried about the boy and returned him to his mother, with whom he stayed until he was 6. अब जैसे ये जो किस्सा हुआ तो हलीमा थोड़ा घबरा गई कि ये थोड़ा डेंजरस मामला है कि अल्लाह ना करे कुछ अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो उनकी पकड़ होगी। तो वो जल्दी जल्दी अपनी उनकी मॉम की तरफ उनको लौटा दिया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी मदर के साथ until he was 6 years old, he was there with her. In respect of the memory of her late husband, Amina decided to visit his grave in Yathrib, Medina. She set out to cover a journey of 500 kilometers with her orphan boy, her father-in-law Abdul Muttalib, and a woman servant Ayman. She spent a month there and then made her way back to Makkah. On the route, she suffered a severe illness and died in Abwa on the road between Makkah and Medina. ऐसा हुआ कि आमिना ने डिसाइड किया कि मैं अपने हस्बैंड की ग्रेव को यथरिब यानी मदीना में विजिट करने के लिए जाऊंगी। तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को लिया साथ में अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब को लिया, और एक जो खदामा आयमन थी, वुमन सर्वेंट, उनको लिया। अब ये 500 किलोमीटर्स की जर्नी थी। वो उधर पहुंची, ऑलमोस्ट 1 मंथ उन्होंने उधर बिताया, और फिर जब वो वापस लौट रही थी तो शी हैड सम इलनेस, बीमार हो गई बहुत शदीद, और एक जगह है मक्का और मदीना के बीच में जिसका नाम अबवा है, तो वहां पर उनकी मौत हो गई। To his compassionate grandfather, Abdul Muttalib brought the boy to Makkah. He had warm emotions towards the boy. His orphan grandson, whose recent calamity, his mother's death, added to the pain of his past bereavement. अभी 6 साल की उम्र में आप सोचिए, पैदाइश से पहले या पैदाइश के वक्त अपने बाबा को खो देना, और उसके बाद 6 साल की इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खो देना, इट्स अ वेरी बिग लॉस एक्चुअली। और ये एहसास उनके दादा को था। अब्दुल मुत्तलिब फेल्ट वेरी स्ट्रांगली कि ये यानी बच्चा जो है इमोशनली बहुत वल्नरेबल है। अब्दुल मुत्तलिब वाज मोर कंपैशनेट एंड लविंग विद हिज ग्रैंडसन देन हिज ओन चिल्ड्रन। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा शफकत का मामला करते थे, अपने औलाद से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर। He never left the boy fall prey to loneliness, but always preferred him to his own child. Ibn Hisham reported a mattress was put on the shade of the Kaaba for Abdul Muttalib. His children used to sit around that mattress in deference to their father, but Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to sit on it. यानी वो कभी भी उसको अकेला, तन्हा, गमगीन होने के लिए नहीं छोड़ते थे, उसको हमेशा अपने साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अपने साथ रखते थे। उनके एक मैट्रेस थी जो काबा के पास लगाई गई थी अब्दुल मुत्तलिब के लिए। उनके जो खुद की औलाद है और दूसरे बच्चे जो हैं वो उसके अराउंड बैठते थे, सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसके ऊपर उनके साथ बैठते थे। His uncles would try to take him back, but if Abdul Muttalib was present, he would say, "Leave my grandson. I swear by Allah that this boy will hold a significant position." He used to sit the boy on his mattress, pat his back, and was always pleased with what the boy did. अब ऐसा होता था कि लाइक टू स्प्रेड द इक्वालिटी या सबके साथ आदल का मामला हो, तो उनके जो ब्रदर्स होते थे वो उनको, उनके जो अंकल यानी चाचा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैट्रेस से अगर उठाने जाते थे या उनसे अलग करने जाते थे तो वो उनको रोक देते थे, कहते थे कि ये ही यूज्ड टू स्वेयर बाय अल्लाह कि वल्लाही ये लड़का जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन हासिल करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल करेगा। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करते थे, उनकी पीठ को सहलाते थे और हमेशा उनसे राजी होते थे। When Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8 years old, 2 months and 10 days old, his grandfather Abdul Muttalib passed away in Makkah. अब आप देखें, एक के बाद एक सदमा हो रहा है, और हम लोग जो हैं लाइक इफ यू जस्ट सी, ये एक बहुत बड़ा लेसन है। जब भी आप ये सीरा पढ़ते हैं ना, आपको समझ आती है कि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला जिसको पसंद करते हैं, उसकी आजमाइश भी वैसी होती है। और सबसे सख्त आजमाइश जो हुई थी वो नबियों की हुई थी। तो अभी आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मोस्ट प्रिफर्ड ह्यूमन बीइंग, ही इज द चोजन वन। लेकिन आप देखें उनके ऊपर कितने गम, कितने सदमे आते हैं। यानी हम लोग जो हैं, हमारे ऊपर ये छोटी मोटी, मैं यानी उसको कंपेयर भी नहीं करना चाहती, लेकिन छोटी मोटी आफतें, मुसीबतें आती हैं हम पर,
और हमारा ईमान कैसे डगमगा जाता है, हम कैसे टूट जाते हैं, हम कैसे बिखर जाते हैं। आप इधर देखेंगे और आगे भी आप सुनेंगे कि एक के बाद एक के बाद एक एकदम दहला देने वाली, इंसान को बिल्कुल तोड़ देने वाली मुसीबतें और ऐसे ऐसे बड़े बड़े गम आते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। लेकिन सुभान अल्लाह, इनका जो दिल में जो अल्लाह की जो रग़बत है, जो मोहब्बत है, उसमें कमी नहीं आती है, तवक्कुल है उसमें कमी नहीं आती है। सुभान अल्लाह, इस टाइप का जो फेथ या इस टाइप का जो ईमान, इस टाइप का जो यकीन है, ये डेवलप करना है हम लोगों को। अब आप देखें, पैदाइश के वक्त, पैदाइश से पहले डैड का गुजरना, 6 साल की उम्र में मदर का गुजरना, और अब ये 8 साल 2 महीना 10 दिन में अपने दादा का गुजरना। अब वैसा दादा जो इतना बड़ा पिलर, ही वॉज अ रियल गुड सपोर्ट। Abdul Muttalib passed away in Makkah. The charge of the Prophet now passed on to his uncle Abu Talib, who was the full brother of Prophet's father. अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको आ गई? अबू तालिब, his chacha. Abu Talib took on the responsibility of his nephew in the best way. He placed him with his own children and preferred him to them. He singled the boy out with great respect and held him in high esteem. Abu Talib remained thus for 40 years, cherishing his nephew and extending all possible protection and support to him. अब अबू तालिब भी जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने भी ये जिम्मेदारी बखूब निभाई और ये भी अपने ऑर्फन नेफ्यू को अपने बच्चों से ज्यादा तरजीह देते थे और उनको बहुत प्यार करते थे, मोहब्बत और रिस्पेक्ट, सब मामला उनके साथ बेहतरीन किया उन्होंने और अल्हम्दुलिल्लाह 40 इयर्स उनके साथ उन्होंने बिताए। जितना प्रोटेक्शन, जितना सपोर्ट, जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। His relations with the others were determined in the light of the treatment they showed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Asakir reported on the authority of Jalhama bin Arfutah, who said, I came to Makkah when it was a rainless year. So the Quraysh said, O Abu Talib, the valley has become leafless and the children are hungry. Let us grow and pray for rainfall. Abu Talib went to the Kaaba with the young boy who was as beautiful as the sun, and black cloud was over his head. Abu Talib and the boy stood by the wall of Kaaba and prayed for rain. Immediately clouds from all directions gathered and rain fell heavily and caused springs to flow and plants to grow in the town and the country. एक बार ऐसा हुआ कि अगेन सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, तो ये इब्न अस्कर रिपोर्ट करते हैं जलहामा बिन अरफुता कि वो आए एक बार मक्का में और कुरैश के पास और अबू तालिब से कहा कि वैली के अंदर जो है बिल्कुल पानी नहीं है और पत्तियां सूख गई हैं, कोई पत्तियां नहीं है, बच्चे जो है भूखे हैं, तो बारिश के लिए दुआ की जाए। तो अबू तालिब जो है काबा में पहुंचे, किसके साथ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अभी वो एक्सप्लेन करें कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ब्यूटी थी, वो इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत, और जब वो चल रहे हैं तो उनके सर के ऊपर काले बादल चल रहे हैं, यानी द रेन इज फॉलोइंग हिम। एंड सुभान अल्लाह, वो उधर गए, पहुंचे काबे के पास, उन्होंने दुआ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, यानी ही इज अ स्मॉल बॉय ऑफ कोर्स, एंड इमीडिएटली क्लाउड्स आए, हर जगह से गैदर हुए और पानी जारी हो गया, प्लांट्स ग्रो होने शुरू हो गए हर जगह पे, सुभान अल्लाह, हरियाली हो गई। Bahira the monk. Bahira the monk. When Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam was 12 years old and they saw plus 2 months and 10 days, he went to his uncle Abu Talib on a trade journey to Syria. When they reached Busra, which was the part of the Syria in the vicinity of Hauran under the Roman dominion, there was a monk named Bahira who came out to meet them. Although he had not met them before, he easily recognized the Prophet Muhammad ﷺ and said, while taking his hand, this is the master of all humans. Allah subhanahu wa ta'ala will send him with a message which will be a mercy to all beings. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की थी, 12 साल 2 महीना 10 दिन। वो अपने अंकल अबू तालिब के साथ एक ट्रेड जर्नी में पहुंचे सीरिया। जब वो बुसरा में पहुंचे ना, बुसरा इज अ पार्ट ऑफ सीरिया जो हावरान में है, रोमन डोमिनियन के पास, यानी रोमन की जो मिल्कियत है उसके पास का हावरान का एरिया है। वहां पर एक मॉन्क था जिसका नाम था बहीरा, उसको लोग जॉर्जिस भी कहते थे। वो आए उनसे मिलने के लिए। वो उनसे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उनका हाथ पकड़ा और कहा, ये जो है ये सारे इंसानों का मास्टर बनेगा।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके थ्रू एक मैसेज भेजेंगे जो कि सबके लिए रहमत साबित होगी वो मैसेज. Abu Talib asked, "How do you know that?" He replied, "When you appeared from the direction of Aqaba, all the stones and trees prostrated themselves, which they never do except for a prophet. I can also recognize him by the seal of prophethood, which is below his shoulder like an apple. We have found this in our books." He also asked Abu Talib to send the boy back to Makkah and not to take him to Syria for fear of the Romans and Jews. Abu Talib obeyed and sent him back to Makkah with some of his male servants. अब अबू तालिब जो थे वो बहुत हैरान और परेशान हुए कि ये फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और इनको कैसे पता चला ये सारी बातों का. तो उन्होंने रीजंस बताए. नाउ बाहिरा जो था ना, ही वाज अ क्रिश्चियन मॉन्क और वो लर्नड स्कॉलर था, यानी प्रीवियस बुक्स की उसको पहचान थी. उनकी किताबों में मेंशन था द साइंस ऑफ अ प्रॉफिट. तो चंद साइंस ये थी कि जब आप अक़बा वो उस डायरेक्शन से जब आप आ रहे थे तो उधर के सारे स्टोन्स और झाड़ जो हैं वो सुजूद कर रहे थे. कहते ये सिर्फ एक नबी के लिए ही होता है. दूसरा, हर नबी को एक सील मिलती है. एंड ही सेइंग दैट आई सॉ दैट प्रॉफिटहुड सील, जो कि उनके शोल्डर के पास है, एप्पल के जैसा एक शेप होता है. और ये जो है ये 2 साइंस ही सेड कि नबी या प्रॉफिटहुड की निशानियां हैं. फिर उन्होंने और एक उनको एडवाइस दी कि आप इन्हें दोबारा से मक्का में भेज दें. सीरिया में जो है रोमन्स का और यहूद का खतरा है, तो आप उनको दोबारा से मक्का में भेज दें. तो अबू तालिब इमीडिएटली ही अंडरस्टूड एंड ही ओबेड. उन्होंने कुछ मेल सर्वेंट्स से उनको मक्का में दोबारा पहुंचा दिया. The sacrilegious wars. When he sallallahu alaihi wasallam was 20 years of age, the sacrilegious wars, which continued with the varying fortunes and considerable loss of human life for a number of years, broke out between tribes. The Quraysh and Banu Kinana were on one side and Qais Elan tribe on the other. It was thus called because the inviolable was made viable, the prohibited months being included. Harb bin Umayyah, on account of his outstanding position and honorable lineage, used to be the leader of Quraysh and their allies. In one of those battles, the Prophet Muhammad ﷺ assisted his uncles. His efforts were confined to picking up the arrows of the enemy as they fell and handing them over to his uncles. अभी जब वो 20 इयर्स की उम्र को पहुंचे तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक किस्म का वॉर हुआ बिटवीन द ट्राइब्स ऑफ कुरैश. एक तरफ थे बनु किनाना, कुरैश और बनु किनाना एक तरफ थे, और दूसरी तरफ थे कैस ऐलान ट्राइब. और इन लोगों ने, यानी आपको बताया था मैंने कि 4 मंथ जो हुर्मत के थे उसमें अलाउड नहीं था कि कोई जंग होनी चाहिए, कोई कत्ल होना चाहिए. लेकिन इन लोगों ने ये जो वॉर था ये उसका भी उन्होंने मान नहीं रखा, और ये प्रोहिबिटेड मंथ्स में भी, ममनू वाले मंथ्स में भी उन्होंने जंग को जारी रखा. और हर्ब बिन उमैया कहते हैं कि उनकी जो थी एक पोजीशन आउटस्टैंडिंग थी, ऑनरेबल थे, तो वो जो थे कुरैश के तरफ से लीडर थे. हर्ब बिन उमैया वाज द लीडर फ्रॉम द कुरैश साइड. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस वॉर में असिस्ट किया था. अब उनका काम क्या था, सिर्फ कि दुश्मनों के जो तीर गिरते थे वो उठा के अपने अंकल्स को देना. Al-Fudul Confederacy. At the conclusion of these wars during the sacred month of Zulqa'adah, when peace was restored, people felt the need to form a confederacy at Makkah for suppressing violence and injustice and protecting the rights of the weak and the poor. जब ये गज़वात ख़त्म हो रहे थे उस वक्त ज़ुल्क़ादा का मंथ था, तो अब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ अग्रीमेंट या कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं ताकि हम जो है मक्का में वायलेंस और इनजस्टिस को और इसको वीक को, जो बेचारे ऑप्रेस हो रहे हैं या उन पे जुल्म जो हो रहा है वो हम ख़त्म करें. So representatives of Banu Hashim, Banu al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahra bin Kilab, and Taym bin Murrah were called to meet in the house of an honorable elderly man called Abdullah bin Ja'ad at-Taymi to enter into a confederacy that would provide for the above-mentioned items. Allah's Messenger ﷺ, shortly after he had been honored with the ministry of prophethood, witnessed this league and commented on it with very positive words. I witnessed a confederacy in the house of Abdullah bin Jad'an. It was more appealing to me than herds of cattle. Even now in the period of Islam, I would respond positively to attending such a meeting if I were invited.
ये जो डिफरेंट चीफ्टन्स थे, यानी कबीले के जो सरदार थे, बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, असद बिन अब्दुल अज़्ज़ा, ज़हरा बिन किलाब बिन तैम बिन मुरा, इनको बुलाया गया था। एक बड़े मोहतरम इंसान जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जादी अतैमी थे, उनके घर में ये मीटिंग कराई गई थी। और ये मीटिंग में इन लोगों ने फिर चंद पॉइंट्स जो हमने कहा कि वायलेंस को ख़त्म करना है, दंगे फसाद को, और जुल्म को ख़त्म करना है, और गरीबों को सपोर्ट करना है, पुअर को सपोर्ट करना है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर उन लोगों ने डिसाइड किया और कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया और फिर उन्होंने कमेंट किया, दिए बहुत पॉजिटिव वर्ड्स दिए कि कहते हैं कि मुझे यानी मैं ये जो मीटिंग अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जो मीटिंग में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अपीलिंग है, हर्ड्स ऑफ कैटल से भी ज़्यादा। यानी अभी उस ज़माने में मसलन व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस के अपनी दुनियावी जो चीज़ों को हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ ट्राइंग टू से कि कुछ बिजनेस मीटिंग जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसके गुना मुझे ये वाली मीटिंग ज़्यादा फ़ायदेमंद लगती है। एंड अगर इस टाइप की मीटिंग हो तो मैं बहुत पॉजिटिवली इसको अटेंड करूँगा फ्यूचर में भी, अगर मुझे इनवाइट किया जाए तो। In fact, the spirit of this confederacy and the course of considerations therein marked a complete departure from the pre-Islamic tribal pride. यानी वो जो एक उन लोगों में अपने अपने कबीले को लेकर जो अना होती थी, उसके अगेंस्ट में ये एक चीज़ थी कि अपनी अना को ख़त्म करते हुए जो लोगों का भला है, जो गरीबों का भला है, तो उसके अंदर कोई एक मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना, तो ये एक नया काम था उनके लिए। इट वॉज समथिंग न्यू। The story that led to its convention says that a man from the Zubayd clan came as a merchant to Makkah, where he sold some commodities to Al-As bin Wa'il as-Sahmi. The latter avoided paying for the goods. The trader sought help from some of his allies from the Quraysh, but they paid no heed to his earnest pleas. He then went to a mountain top and began, at the top of his voice, to recite verses of complaint, giving an account of injustice he had sustained. अब ये एक किस्सा बताया जा रहा है कि जुबैद के एक ट्राइब से एक मर्चेंट मक्का में आए थे कुछ अपने सामान बेचने के लिए। किसको? अल-आस बिन वाइल अस-सहमी को। अब ये जो सामान बेचने के लिए आए थे और ये जो मक्का का जो ताजिर था, इसने उनको पैसे देने से इनकार कर दिया। अब वो जो ट्रेडर था वो ऑफ कोर्स परेशान हुआ, उसने अपने कुछ जो उनके पहचान वाले थे कुरैश में, उनको कंप्लेन की, बट किसी ने उसकी नहीं मानी रिक्वेस्ट को। फिर वो क्या किया, थक हार के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और जोरों में चिल्लाने लगा, कंप्लेन करने लगा कि कैसे अज़ुबैर बिन अब्दुल कि कैसे ये अल-आस बिन वाइल अस-सहमी उस पर जुल्म कर रहे हैं। अज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब मेड इंक्वायरीज इनटू द मैटर। अब अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे थे अज़ुबैर, उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू किया। Consequently, the parties to the aforesaid confederacy convened their meeting and managed to force money for the man from Zubair out of Al-As bin Wa'il. अब ये जो पार्टीज थी जिन्होंने ये कॉन्फेडरेसी, अल-फुदूल नाम की जो कॉन्फेडरेसी थी, वो लोग इसमें इंटरवीन करे और उन्होंने फोर्सफुली अल-आस बिन वाइल अस-सहमी से पैसे निकाल कर ये जो आदमी जुबैद से आया था उनको दिया। Muhammad sallallahu alaihi wasallam's early occupation. Muhammad sallallahu alaihi wasallam had no particular job at his early youth, but it was reported that he worked as a shepherd for Bani Sa'ad and Makkah for a wage. At the age of 25, he went to Syria as a merchant for Khadija radiallahu anha. Ibn Ishaq reported that Khadija radiallahu anha's daughter of Khuwailid was a businesswoman of great honor and fortune. She used to employ men to do her business for a certain percentage of the profits. अभी अर्ली यूथ में जो उनकी जवानी का पीरियड था, उसमें उनके पास कोई एक प्रॉपर पर्टिकुलर जॉब नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एज अ चरवाहा बनी साद के लिए मक्का में काम करते थे, थोड़ी सी उजरत के लिए। लेकिन 25 साल की उम्र जब उनकी हुई तो वो सीरिया में गए एज अ मर्चेंट। और किसके लिए वो वर्क करने लगे? खदीजा रदियल्लाहु अन्हा। खदीजा रदियल्लाहु अन्हा जो थी वो खुवैलिद की बेटी थी और एक बड़ी बिजनेस वुमन थी जिसका बहुत नाम था, नोबल फैमिली को बिलोंग करती थी और काफ़ी उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट थी। वो आदमियों को एम्प्लॉय करती थी जो उनके बिहाफ में बिजनेस करते थे और वो उनको अच्छा प्रॉफिट देती थी। The Quraysh were merchants, so when Khadija radiallahu anha was informed of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his truthful words, great honesty and kind manners, she sent for him. She offered him money to go to Syria and do business for her.
and she would give him a higher rate than the others. She would also send her servant Maisara with him. He agreed and went with her to Syria for trade. अब इनकी कंडीशंस ऐसी थी कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो आदमियों को अपनी कमोडिटी दे के, यानी ट्रेडर्स जो उनके थे, यू कैन से उनके सेल्समैन, आई कैन से ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये उनको मनी देकर, अपना गुड्स देकर, शी यूज्ड टू सेंड देम टू सीरिया कि वो उनके बिहाफ में बेचे, बिजनेस करे, और फिर उसके बाद उनको परसेंटेज दिया करती थी. अभी जब उनको पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका नाम था कि वो बहुत सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय दैट. तो उन्होंने उनको कहा कि मैं आपको औरों से ज्यादा पैसे दूंगी, एट अ हायर रेट, और मैं अपनी सर्वेंट मैसरा को भी भेजूंगी आपके साथ. एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग्रीड टू एवरीथिंग, और वो फिर सीरिया में गए उनके बिहाफ में ट्रेड करने के लिए. His marriage to Khadija radiallahu anha. When he returned to Makkah, Khadija radiallahu anha noticed greater profits and blessings in her house or in her business than usual. Her servants also told her of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's good manners, honesty, deep thought, sincerity, and faith. Upon realizing this, she developed a wish for marriage. Earlier, many prominent men had asked for her hand in marriage, but she had always refused their advances. She disclosed her wish to her friend Nafisa, daughter of Munia, who immediately went to Muhammad sallallahu alaihi wasallam to inform him. अब ये मैसरा वापस आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए सीरिया से, और ज्यादा प्रॉफिट और बरका लेकर. तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा क्विकली रियलाइज दैट दिस इज अनयूजुअल. और उसके साथ में जब मैसरा ने उनके किस्से सुनाए कि वो कितने अच्छे अदब वाले हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने उनकी सोच जो है, उनका जो बिहेवियर है, उनका इखलाक जो है, उनकी सिंसियरिटी जो है, उनका फेथ जो है, वो सब फंटास्टिक है. ये सुनकर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में शादी की उमंग जाग उठी. अब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा was one of the most sought out bachelorette of मक्का, यानी काफी सारे लोग उनसे शादी करना, निकाह करना चाहते थे, but she didn't accept. By the way, she was married twice before. This was her third thing. अब उन्होंने जब अपनी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी जो सोच है वो अपनी फ्रेंड नफीसा को बताया. नफीसा जो मुनिया की डॉटर थी. अब वो जाके नफीसा ने इमीडिएटली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म किया. He agreed and requested his uncles to go to Khadija's uncle to discuss the matter. अब आप ये किस्सा जो है बड़ा स्वीट और सिंपल है, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें हैं जिससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग कितने डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स माइंड के लोग हैं, या हमने अपने आसपास जो है कितने बैरियर्स और कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. पहले नंबर पे तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज, शी इज एल्डर, राइट. दूसरे नंबर पर ऑलरेडी पहले 2 बार शादी हो चुकी, उनसे औलाद बाकायदा थी उनकी. तीसरे नंबर पर बीइंग अ वुमन, शी इज हैविंग दैट अथॉरिटी टू प्रपोज और टू एक्सप्रेस कि शी लव्स समवन एंड शी इज लुकिंग आउट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. ये 2-3 चीजें जो हैं आप देखें. अब हम लोगों ने जो अपने दीन का हिस्सा समझ के हम चलते हैं, हालांकि वो है हमारा कल्चरल बाउंड्रीज, वो हमारी सोशल बाउंड्री है जो हमारी सोसाइटी ने बांधी है, दीन के तरफ से नहीं है वो बंधन, लेकिन हमने खुद वो बॉर्डर्स बना के अपनी जानों को मुश्किल में डाल दिया. हमने एक फार्मा बनाया, अपना खुद एक मॉडल बनाया हुआ. फीमेल शुड बी यंग, फीमेल शुड बी सिंगल, फीमेल कैन नॉट प्रपोज या फीमेल कैन नॉट इनिशिएट अ प्रपोजल. ये सब हमारे यहाँ ममनू, यानी बहुत कंडेम किया जाता है, उसको पसंद नहीं किया जाता है. One minute, I got a message. कोई साउंड एक्स्ट्रा आ रही है इधर से? I don't know. I mean, everybody can hear me clearly? या बीच में कुछ आ रहा था पीछे. I don't know. कुछ भी ऐसा आए तो प्लीज रेज यानी अनम्यूट करके मुझे बताएं, because I don't see anything as such. अभी ठीक है? जी अभी ठीक है. अच्छा, कुछ मिस तो नहीं हुआ ना पॉइंट? डू यू वांट मी टू रिपीट? नहीं मिस नहीं हुआ, बट 10-15 मिनट से कुछ ऐसा साउंड आ रही है, पता नहीं क्या है. अच्छा, आई डोंट नो, मेरे पास कुछ है नहीं, आई डोंट नो. हाँ अभी नहीं आ रही है. ऑलराइट, चलो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट देन. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हम लोगों ने जो है ना अपने आसपास जो है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस रखे. अब देखिए कितना सिंपल वे में इनका निकाह होने जा रहा है. आई टोटली अंडरस्टैंड कि
times have changed, but मेरा कहना ये है कि हम लोगों को फॉलो क्या करना है पता है, हम लोगों को वो फॉलो करना है जो पार्ट ऑफ दीन है। लेकिन हम लोग जो है ना, जो पार्ट ऑफ दीन है वो हम उसको नीचे ले जाते हैं और उसके ऊपर हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, थिंग्स जो कि हमारी सोसाइटी और कल्चर और हमारी फैमिली ट्रेडिशंस जो हैं उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बल्कि हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कई बार हम बिदा में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन हम वो फैमिली और वो सोसाइटी के प्रेशर में इतना होते हैं कि हम वो करने से बिल्कुल नहीं कतराते, बिल्कुल नहीं शर्माते और बिल्कुल हमें खौफ नहीं आता। तो प्लीज ये चीजों के बारे में आप सोचा करें और अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के अंदर एटलीस्ट हम उनको बिदा करने से रोकें, शिर्क करने से रोकें। जहां तक हमारी अथॉरिटी है हम उसको एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर हम इसे रोकेंगे नहीं आज, या हम ये जो मन घड़त चीजें हैं इसको आगे लेकर अगर हम चलते रहे तो मतलब हमने भी गुनाह किया, हमारे पेरेंट्स को भी हमने गुनाह में डाल दिया। क्योंकि हमारे हाथ में, इफ यू नो द ट्रुथ, आपको उनकी भी इस्लाह करनी चाहिए, राइट? इस्लाह का सिलसिला ऑल डायरेक्शंस में होना चाहिए। आपके ऊपर की हायरार्की यानी अपने आपके एल्डर्स को, एंड आपके नीचे जो आपके छोटे हैं उनको, और आपकी जो लाइन में है हॉरिजॉन्टल उनको। आपका फर्ज बनता है कि आप गलत काम को रोकें अपने हाथ से, अपनी बात से, अपने दिल में आपको रोकना पड़ेगा, एंड अल्लाह नोज द निया। लेकिन हमें जरूर करना है। इनफैक्ट हम लोग इंशाल्लाह वन ऑफ द सैटरडेज टॉक शोज में ये कल्चरल की चीजों को इंक्लूड करेंगे, तो हम डिटेल में इसको इंशाल्लाह ताला वहां पर कवर करेंगे। बट आई जस्ट थॉट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, ताकि मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दूं इसके बारे में। सो अब जैसे ही इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू हिम, he agreed and requested his uncles to go to Khadija's uncle to discuss the matter. Subsequently they were married. Simple and sweet. जैसे ही उनको पता चला वो राजी हो गए एंड उन्होंने अपने अंकल को भेजे, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंकल्स के पास, ताकि वो मामला डिस्कस करें, और उनकी इवेंचुअली शादी हो गई। The marriage agreement was witnessed by Bani Hashim and the chiefs of Mudar. This took place after the Prophet's return from Syria. He gave her 20 camels as a dowry. At the time, she was 40 years old, and was considered the best woman in lineage, fortune, and wisdom. She was the first woman Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam married. He did not get married to any other until she passed away. अब इनके जैसे ही शादी का मामला फिक्स हो गया, बनी हाशिम और चीफ ऑफ मुदार जो थे उन्होंने एग्रीमेंट को विटनेस किया, और इनकी शादी इमीडिएटली जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया से आ गए उसके बाद हो गई। और उनको मेहर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 कैमल्स दिए। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी और वो बेस्ट वुमेन कहलाती थी, लिनिएज में, फॉर्च्यून में, विजडम में, हिकमत, सब चीजों में वो नंबर 1 थी। और वो फर्स्ट वुमेन थी जिसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था, और जब तक वो हयात थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया था। With the exception of Ibrahim, Khadija radhiyallahu anha bore all of his children. Al-Qasim, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima, Abdullah, who was also called Tayyib or Tahir. All his sons died in their childhood, and all the daughters except Fatima died during his lifetime. Fatima died 6 months after his death. All his daughters witnessed Islam, embraced it, and emigrated to Medina. उनके सारे बच्चे एक्सेप्ट इब्राहिम जो है वो मारिया किप्तिया को हुआ था इवेंचुअली, and he also passed away. बाकी सारे जो बेटियां थी, 4 बेटियां और बेटे, वो सब इनको हुए थे, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को। अल-कासिम, ज़ैनब, रुक़ैया, कुलसुम, फातिमा और अब्दुल्ला का नाम तैयब और ताहिर भी है। और सारे बेटे जो थे उनके ऑलरेडी वफात पा चुके थे, और बाकी सारी बेटियां जो थी उनकी लाइफ टाइम में ही फौत हो गई थी, एक्सेप्ट फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो आफ्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने बाद उनकी वफात हुई थी। और सारी बेटियों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया था अच्छी तरह से, और मदीने में हिजरत भी कर चुकी थी। Rebuilding Al-Kaaba, an arbitration issue. When Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was 35, the Quraysh started rebuilding Al-Kaaba. This was because it was a low building of white stones, no more than 9 arms length. From the days of Ismail alayhi salam, it was also roofless, leaving thieves with easy access to the treasures inside. It was also exposed to the varying forces of nature that weakened and cracked its wall, since it was built so long. अब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 इयर्स है। कुरैश जो थे
वो काबा रिबिल्ड करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि काबा की जो लेंथ थी, हाइट, वो सिर्फ 9 आर्म्स ऊंची थी और उसकी छत भी नहीं थी। तो ऐसा होता था कि खतरा होता था कि उनके अंदर जो ट्रेजर्स हैं वो चुरा लिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर बारिश और विंड और ये फोर्सेस की वजह से उसकी दीवारों पे क्रैक पड़ गई थी, क्योंकि वो जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था उस टाइप का ही था, उसमें कुछ रिफर्बिशिंग नहीं हुई थी। So 5 years before the advent of prophethood, there was a great flood in Makkah that swept towards Al-Kaaba and almost demolished it. यानी 5 साल पहले नबूवत के मक्का के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आया था और उसने काबा को ऑलमोस्ट नुकसान पहुंचाते हुए डिमोलिश कर दिया था। इसलिए कुरैश जो थे वो इसको रिबिल्ड करना चाह रहे थे ताकि वो उसको सेफगार्ड करें, उसकी हुर्मत को और उसकी पोजीशंस को उसको इंटैक्ट करें। और chiefs of the Quraysh decided to use only lawful money in rebuilding Al-Kaaba. So all money derived from immoral means, usury or unjust practice was excluded. अब उन्होंने क्या कि जितनी हलाल इनकम जो थी सिर्फ उसी को ही काबा को रिबिल्ड कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया। अगर कोई भी इमोरल मीन्स से या गलत काम या हराम की इनकम जो थी उसको एक्सक्लूड कर लिया। At first they were too fearful to knock down the wall, but Al-Wahid bin Al-Mughira Al-Makhzumi began the task. Seeing that he was unharmed, others participated in demolishing the walls until they reached the foundation laid by Ibrahim alayhi salam. When they started rebuilding its wall, they divided the work among the tribes, such as each tribe was responsible for rebuilding a part of it. The different tribes collected stones and started work. अभी ऐसा हुआ कि of course काबे की एक अपनी हुर्मत होती है, तो उनको जो है ना डर लग रहा था कि हम ये जो वॉल्स उसको डिमोलिश कैसे करें, हम अगर इसको तोड़ेंगे तो हम पे कुछ अजाब आ जाएगा। लेकिन अल-वलीद बिन अल-मुगीरा अल-मखजूमी जो थे उन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया। उन्होंने उनको देखा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो दूसरे भी आ गए। अब आप देखिए हम लोगों की जो सोच है ना, एक दो पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है यहाँ पर कि हम लोग जो है ना कई बार कंसेप्ट्स को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग जो है ना एक वन ट्रैक माइंड लेकर चलते हैं। अभी जैसे यही एक किस्सा हुआ, ये सिर्फ उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी भी प्रॉब्लम है। हम लोग जो है ना मेन चीज को छोड़कर आसपास की अननेसेसरी फीलिंग्स और इमोशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मसलन अभी आप देखें जैसे इनकी इंटेंशन क्या है, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि अल्लाह ताला जो है इंटेंशंस के हिसाब से हमारी डीड्स बेस्ड होती है। क्या इनकी इंटेंशन वो अब्राहा की इंटेंशन थी कि काबा को डिमोलिश करना है? इनकी इंटेंशन बल्कि रीबिल्ड करने की है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की है, उसको सपोर्ट करने की है, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने की है। लेकिन फिर भी इनके अंदर वो खौफ तारी है, क्या है कि हम अगर इसको टच करेंगे या इसको तोड़ेंगे तो हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ बुरा करेंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अल्लाह आपके दिलों के हाल जानते हैं, अल्लाह knows your intention, so go ahead with the positive intention. And actually the wise man Al-Walid bin Al-Mughira Al-Makhzumi did the same. उसे पता था कि नियत मेरी क्या, अल्लाह knows what I'm doing. He did it, he was unharmed, और उसका देखा देखी फिर सारे शुरू हो गए। तो सुभान अल्लाह, these things we have to understand. हम लोग जो है ना मेन कंसेप्ट, मेन नस को, मेन रूट को छोड़कर हम इधर उधर की मनगढ़ंत इमोशंस में लग जाते हैं। The man who laid the stone was a Roman mason called Baqum. अब उन्होंने क्या वॉल को तोड़ना शुरू किया एंड वो फाउंडेशन तक पहुंच गए थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ले की थी। फिर उसके ऊपर वो लोग मजबूती से स्टोन्स और न्यू मटेरियल को रिबिल्ड करना था। अब जो मेन मेसन था, जो मेन रोमन कड़िया था, उसका नाम था बकूम। The work went on in harmony until the time came to restore the sacred black stone to its proper place. अब सारे कबीलों के अंदर उन्होंने एरिया बांट दिया था, काम बांट दिया था। अब बारी थी हजर अस्वद को प्लेस करने की। अब हजर अस्वद की एक अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी ग्रेस है, जन्नत का है वो स्टोन, और उसको प्लेस करना है, उसकी हुर्मत ऑफ कोर्स अपनी मेंटेन्ड है आज तक, सुभान अल्लाह। तो अब जो चीफ्स थे उनके बीच में इख्तिलाफ शुरू हो गया। दे वर having a strife. ये strife lasted for 4 or 5 days, each contesting for the honor of placing the stone in its position. उन्होंने कहा हमको हमारा कबीले का चीफ करेगा, हमारे कबीले का चीफ करेगा। उनको they wanted the priority कि हमें मिले ये काम करने के लिए, हमें ये ऑनर मिले कि हम वो ब्लैक स्टोन को प्लेस करें। इतना इनमें गर्मा गर्मी शुरू हो गई कि बस अभी तलवारें म्यान से बाहर निकलने वाली थी और खूब सारा ब्लड शेड होने वाला था।
Luckily, the oldest among the chiefs, Abu Umayyah bin Mughir al-Makhzumi, made a proposal that was accepted by all. He said, let him who enters the sanctuary first of all decide on the point. आपको पता है कई बार ना हम लोग जो है ना बुजुर्गों से बड़ा तंग होते हैं, यानी उनकी बातें, उनके थॉट्स, उनके परसेप्शंस, उनकी टोका टाकी या उनकी हर चीज में दखल अंदाजी को हम बहुत बुरा समझते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग. आप अगर एक पल सोचें कि जो ये बड़े लोग जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, इनकी एक हिकमत होती है, इनके अंदर एक विजडम होती है, इनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल होती है, इन्होंने आपसे दुनिया ज्यादा देखी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, सुभान अल्लाह, हमें उसका एहतराम, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको इग्नोर या उनकी बातों को दबा नहीं देना चाहिए. बहुत अनलकी है वो घर जिनके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, और उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट वो है जिनके घर पे है और वो उनकी कदर नहीं करते. तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल एंड रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ कि अपने बुजुर्ग जो भी हैं, जो भी हयात, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हयात दे, नेक बनाए, उनके गुनाहों को माफ करे और उनको क्या कहते हैं, तहम्मुल दे या रब, और हमें ऐसी क्वालिटी दे, तौफीक दे कि हम उनकी कदर कर सकें और अपने जन्नत का रास्ता जो है वो आसान कर सकें, अल्लाह को राजी कर सकें या रब. द पॉइंट इज दैट दे हैव विजडम, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें जो है ये खुद करना है ताकि हमारी औलाद हमें देखें, और वो भी हम जब कल उस पोजीशन पे आए तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें वो इज्जत दिलवाए. तो आप देखें, जब ये गर्मा गर्मी चल रही है, सो कॉल्ड बस तलवारें मियां से बाहर निकल रही है, तब एक बुजुर्ग अबू उमैया बिन मुगैर अल-मखजूमी ने कहा कि हम लोग ऐसे करते हैं कि ये सैंक्चुरी के अंदर, काबा की सैंक्चुरी के अंदर जो पहला बंदा आएगा वो डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए. अब अल्लाह की मर्जी देखें, कौन एंटर कर रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the first one to enter the masjid. On seeing him, all the people present cried with one voice, Al-Amin, the trustworthy has come. Subhanallah, यानी जिसके ऊपर, जिनकी बातों के ऊपर बहुत भरोसा है, जो बेस्ट आदमी है, वो एंटर कर रहा है. We are content to abide by his decision. सबने पहले अग्री कर दिया कि ये जो भी डिसाइड करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे. They informed him of their objective. He asked for a mantle and spread it on the ground, placing the stone in its center. He then asked the representatives of the different clans among them to lift the stone all together. When it reached the proper place, Muhammad sallallahu alaihi wasallam laid it in the original position with his own hands. This is how a very tense situation was eased and a great danger averted by the wisdom of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब आप देखें, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि एक छोटी सी बात पे जंगे होने का डर था, खून खराबा होने का डर था. एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बुजुर्ग की हिकमत, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने कितने अच्छी तरह से यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह पे पहुंचाया ताकि वो अपनी बसीरत से, अपनी इंटेलिजेंस से ये मामला को और भी अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया. उन्होंने कहा, उन्होंने एक मैंटल यानी दरी बिछाई और कहा कि स्टोन को जो है उसके सेंटर में रखो, और फिर डिफरेंट क्लैंस के जो चीफ थे, डिफरेंट कबीले के जो चीफ थे, उन लोगों को कहा एक एक कोना पकड़ लो, और फिर उन्होंने इकट्ठे उठाया और वो उस मकाम तक पहुंचे. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से स्टोन को प्लेस किया एंड सब राजी, एवरीबडी वाज हैप्पी, और एक बहुत बड़ी आफत और मुसीबत टाल दी गई, वो भी बहुत खूबसूरती से. The Quraysh ran out of the lawful money that they had collected, so they eliminated an area covering 6 arms length on the northern side of Al-Kaaba, which is called Al-Hajar or Al-Hatim. They raised its door from the level of the ground to let it only the people whom they wished. When the structure was 15 arms length high, they erected the roof, which rested on 6 columns. अब जो हलाल की जो इनकम थी, जो कुरैश ने कलेक्ट की हुई थी, वो खत्म हो गई. तो अब जो नॉर्थ साइड में है अल-काबा के, जो अल-हजर अल-हतीम का जो एरिया है, हतीम का एरिया, वो एरिया में सिर्फ 6 आम की दूरी का जो एरिया कवर हुआ, बाकी रह गया था. उन्होंने वहां से एक डोर को रेज किया और फिर उसके बाद उसमें उसी को ही अलाउ करते थे जिसको उनकी मर्जी थी. दे कंट्रोल्ड इट, यानी कि जिनको एंटर करने की विश उनकी थी उन्हीं को ही अलाउ करते थे. और जब स्ट्रक्चर 15 आर्म्स लेंथ हाई पे पहुंच गया, फिर उन्होंने उसके ऊपर छत लगाई, और छत जो है वो 6 कॉलमों के ऊपर रेस्ट कर रही थी. When the construction of Al-Kaaba was complete, it assumed a square form about 15 meters high. जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया तो तकरीबन 15 मीटर का एक क्यूब
जैसा हाई तैयार हो गया स्क्वायर में. The side with the black stone and the one opposite were 10 meters long each. एक साइड पे ब्लैक स्टोन था और साइड्स जो थे वो 10 मीटर के each corners थे. The black stone was 1.50 meters from the circumambulation level ground. The two other sides were 12 meters long each. The door was 2 meters high from the level ground. A building structure 0.25 meter high and 0.30 meter wide on the average surrounded Al-Kaaba. It was called Shadharwan, originally an integral part of the sacred sanctuary, but the Quraysh left it out. अभी उनकी वहां पर जैसा what do you call it, उनकी कैश और अवेलेबिलिटी जैसी थी, उस हिसाब से उन्होंने जितना बेस्ट कर सकते थे उन्होंने वो काम किया. तो उन्होंने कुछ मीटर्स हाई लेवल ग्राउंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर का वो जो डायमेंशन है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट एंड आई आल्सो डोंट नीड टू रिपीट इट. तो वो डायमेंशन के हिसाब से उन्होंने उसको सराउंड किया. और फिर एक जो एरिया था जिसको शधरवान, जो कि ओरिजिनली अंदर था सेंचुरी के, लेकिन अभी इनको एक्चुअली जैसे हमने देखा पैसे और मटेरियल की कमी हो गई थी तो उन्होंने उसको बाहर कर दिया. बट स्टिल नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ अभी जो करंट में जो है वो काफी उसके बाद चेंजेस आए हैं. सो वी एक्चुअली डोंट नो वेयर इज शधरवान राइट नाउ. सो बट उस टाइम पे जो था वो उन्होंने एक पार्ट जो है वो एक्सक्लूड किया हुआ था. A summary of Muhammad's biography before commissioning of the prophethood. In his youth, Prophet Muhammad ﷺ was a combination of the best social attributes. We all know this very well. कि नबूवत के पहले भी सुभान अल्लाह उनके अंदर बहुत बहुत जबरदस्त क्वालिटीज थी, बेहतरीन इखलाक था. And people used to admire and respect and honor him a lot. He was an exemplary man with a weighty mind and faultless insight. He was favored with intelligence, originality of thought, and accurate means leading to his goals. His periods of long silence helped his habit of meditation and deep investigation into the truth. चंद चीजें जो हम लोग अपने लिए मार्क कर सकते हैं. उनके बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में और फर्दर बताया जा रहा है कि उनका जो माइंड था, इंटेलिजेंट तो वो थे ही, उनकी जो थॉट्स थी वो बहुत ओरिजिनल थी, कहीं से कॉपी या इन्फ्लुएंस्ड वाली थॉट्स नहीं थी उनकी. उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट और ओरिजिनल थी और बहुत एक्यूरेट, एकदम सही जरिया लेकर वो अपने गोल्स तक पहुंचा करते थे. कई बार वो खामोश रहना पसंद करते थे, खामोश रहकर. अब ये जो उनकी खामोश रहने वाली जो क्वालिटी थी, ये आगे चल के उनके लिए बहुत काम आई जब वो गारे हिरा में तदब्बुर में चले जाते थे, यूज्ड टू मेडिटेट. तो वो चीज में ये बहुत उनको हेल्प किया. और इसका एक और एक फायदा ये होता था कि वो किसी भी चीज यानी हक के लिए जो उनका डीप इन्वेस्टिगेशन होता था, उसमें उनकी खामोश फोकसिंग बहुत काम आती थी. अब जो बात मैं कहना चाह रही हूँ कि कई बार आप देखेंगे देयर आर मेनी हदीथ ऑन दिस कि वी टॉक अ लॉट, हम अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, अननेसेसरी बात करना या अपनी जबान को अननेसेसरी यूज करना. यू नो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मेजर्ड, यानी आपके मुंह से निकली हुई हर बात जो है उसका हिसाब होना है. एंड ज्यादातर आपको पता है ना कि बहुत सारी गुनाह का जो बायस बंदा बनता है वो अपनी जबान से होता है. तो जैसे कि सारे हमारे अज्जा जो हैं सुबह में जबान को कहते हैं कि भाई तू अगर कंट्रोल में रही तो हमारा जन्नत का रास्ता आसान है, और अगर तू आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो हमारे लिए जहन्नम का रास्ता खुल जाता है. तो आप देखें कि ये जो एक जबान है, जबान और दिमाग का बहुत स्ट्रेट कनेक्शन है. काफी लोग जो होते हैं वो अपनी, यानी अगर हम एग्जिस्टेंस में देखें, हाउ अल्लाह हैज क्रिएटेड अस विद 2 ears and 1 tongue. There is a wisdom behind it. 2 गुना सुनना है, ठीक है, और 1 गुना बोलना है. Become good listeners. Okay? दूसरे नंबर पर जबान में कोई हड्डी नहीं है, सॉफ्ट स्पोकन, वेरी सॉफ्ट स्पोकन. ऐसी कोई सिफत नहीं जिससे कि आपकी जबान जो है वो 2 धारी तलवार की तरह इधर उधर कट करती फिरे लोगों को. कम गुफ्तार सुखन मुख्तार. आप जितना कम बोलेंगे, जितना फोकस करेंगे, जितना इसका यूसेज पॉजिटिव करेंगे, उतना आपकी सोच जो है ना वो क्वालिफाइड एंड क्वांटिफाइड होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वाइज लोग होते हैं ना, वो अननेसेसरी अनवांटेड टॉक्स में, स्मॉल टॉक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ये उनकी एक
खासियत है, ये उनकी एक ट्रेट है. इवन दो वी माइट फील दैट, हम सबको लगता है, औरतें खास तौर से, कि हम नहीं बोलती, लेकिन हम बोलते हैं बहुत ज्यादा, अननेसेसरी हम बोलते हैं. तो आई वुड जस्ट से एज एन एक्टिविटी दैट आप अपना अपना जायजा लें. वेयर एम आई यूजिंग माई टंग रॉन्गली, उसको ध्यान करके नोट्स कर लें, बना लें एक छोटी सी एक्टिविटी कि यहाँ पर मेरा जरूरी नहीं था, यहाँ पर गॉसिप मेरी जरूरी नहीं थी, ये फोन कॉल वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, ये डिस्कशन वाज जस्ट इररेलेवेंट. ऐसा धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस करते जाएं. और फिर उसके बाद इन्वॉल्व योर सेल्फ इनटू रीडिंग, इन्वॉल्व योर सेल्फ इनटू, कि जब आपकी जबान खुले, ईदर यू स्पीक गुड और यू रिमेन साइलेंट. अगेन दिस आर द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फेमस हदीथ. सो हमें अपनी जबान का जो इस्तेमाल करना है वो हक के लिए, वो अच्छाई के लिए, वो नेकी के लिए और अजर के लिए करना है. अच्छी खूबसूरत कीरत करें कुरान की, किसी को अच्छी सलाह दें, कुरान हदीथ ये पढ़े और पढ़ाएं. ये सारे कामों में लगे कि जब भी आपकी जबान खुले खैर हो. जब हम ये कामों में लग जाएंगे और यही चीज हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपके सोचने का जो तरीका है, आपकी जो फोकस एंड कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी. एंड आप देखेंगे कि ये सारे जितने हमारे प्रोफेट्स एंड सहाबाज एंड ताबाइन एंड ताबाइन, ऑल द स्कॉलर्स, इनकी ये क्वालिटी होती थी. एक्स्ट्रा सोना नहीं, एक्स्ट्रा खाना नहीं, एक्स्ट्रा बातें नहीं, extra socializing nahi. Again, this is one of the hadith that I'm mentioning. Why? There is a very huge connection of a person being a person of substance and a person just being a chatterbox. And this is one of the loops for shaitan to enter. So may Allah make us among those जो कि अपने अज़्ज़ा को जो है खैर के लिए इस्तेमाल करें, अजर के लिए इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला हमको ऐसे सारे अननेसेसरी गुनाहों से बचाए. And may Allah make us among the pious, among the muqarrabun ya Rab. We have to end here because it's about time. Any questions? No questions? कोई discussion forum? Alright. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.